پہ ہے. اکبر سینے میں کیا ہے؟ بابا سینے میں برچی ہے. مارنے والے نے کہا ہے سنتے ہیں حسین بڑا صابر ہے. غلامینی لکھتے ہیں باپ نے بیٹے کے زخم کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے سینے میں ہاتھ ڈالا. برچھی میں ہاتھ آیا جوان لرز گیا. سر سے لے کر پاؤں تک اکبر کانپ گیا. جوان کی پیشانی پہ موت کا پسینہ آیا. حسین نے رو کے فرمایا خدا روزے حسن روزے خدا روزے. روایت میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں جناب حر کے بیٹے، جن کی لاش اٹھانے امام حسین علیہ السلام خود گئے. کوئی نہیں کہتا. جناب حر فرماتے ہیں میں جس وقت اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے گیا میں نے عجیب منظر دیکھا. میرے جوان بیٹے کا منہ ہے اور حسین کی جھولی. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا کریمی کی حد دیکھیے. میرے جوان بیٹے کا سر اپنی جھولی میں ڈال کے حسین چہرے پہ پیار کر کے فرما رہے ہیں بیٹا تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ بیٹا زیادہ تکلیف تو نہیں محسوس ہو رہی؟ اب حر فرماتے ہیں میں قریب گیا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا دیجئے میں اپنے بیٹے کی لاش لے کر جاؤں. شاہ صاحب حر کہتا ہے مجھے موت آ جاتی میں نہ یہ لفظ کہتا اور نہ پھر جواب سنتا. اب جو میں نے کہا کہ مولا دیجئے میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں، حسین فرماتے ہیں حر دور ہٹ جا. تیرے بیٹے کی لاش تو نے نہیں میں نے اٹھا لی. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا اچھا نہیں لگتا. مولا کہاں یہ غلام کا بیٹا؟ مولا کہاں آپ امام کے بیٹے؟ مولا بھلا اچھا لگے گا کہ غلام کے بیٹے کی لاش کو امام کا بیٹا اٹھائے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اور کہتا ہے میں کاش یہ جملے نہ کہتا. جس وقت میں نے بات امام اور غلام پہ کی، امام حسین نے میرے جوان بیٹے کی لاش کو زمین پہ لٹایا، میرے گلے میں بازو ڈال کے فرماتے ہیں حر مسئلہ امام یا غلام کا نہیں ہوتا. ایسے موقعوں پر مسئلہ ہے میرے نانا کی شریعت کا. میرے نانا کی شریعت امام غلام کی بات نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان کا لاش. میرے مولا ان آنکھوں کو سلامت رکھیں. یہ آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں جو غریب زہرا کے غم میں ایسے چھلک آئی ہیں. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں. کیا درد بھری لہر آئی ہے، خدا کی قسم کیا درد بھری لہر آئی ہے. مسئلہ امام یا غلام کا نہیں ہے، میرے نانا کی شریعت. سامعین گرامی موت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. محسوس نہ کیجئے گا. خدا نہ کرے بزرگوں کے سائے سلامت رہیں. اللہ کرے کہ بچوں کی رونقیں لگی رہیں. موت کسی کی بھی ہو وہ موت ہوتی ہے، لیکن جو ایک جوان کی موت ہوتی ہے نا وہ ایک فیملی کی موت نہیں ہوتی، وہ پورے علاقے کا دکھ ہوتی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ چہرہ کون ہے جو اس بات پہ ہائے نہیں کرتا. رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے. بازار شام میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب جناب اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پر ایک عیسائی عورت نے دیکھا اور دیکھتی گئی. جب نہ رہ پائی تو دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹ کے کہتی ہے مجھے کوئی خدا را جواب دے، جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہے. کوشش کیجئے گا میرے بھائیوں. میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں. میرے مولا سلامت رکھیں. یہ درد چاہیے. جو ہماری نظروں میں چاند ہے نا، میں گل پنجابی چ کردا. کوئی بندہ یہ نہ کہ بھی علی عباس جلدی کر گیا وے. واقعہ کربلا تو تقریباً 2 سال دے بعد یہ سامنے کیمرے لگ رکھے ہیں، اللہ کرے میری آواز پہنچ جائے. 3 سال یزید کی ظاہراً حکومت ہے. پہلے سال اس نے اولاد رسول کا قتل کیا، اور جس وقت تمام عرب اور
गिरदनवा में बात फैली कि यजीद ने अमीरुल मोमिनीन की खुद की बनाई हुई मसनद पर बैठ के रसूल खुदा की औलाद को ज़िबा कर दिया। लोगों ने उसकी बैत तोड़ना शुरू कर दी, और ये इतना जालिम तरीन शख्स था, खुदा इस पर लानत करे। वाक़या करबला के 1 साल बाद जब इसे पता चला मदीने वालों ने मेरी बैत तोड़ी है, इसने हसीन बिन नमीर कातिल अली अकबर, इसकी सरबराही में हज़ारों का लश्कर मदीना की जानिब रवाना किया। आपको नहीं यकीन आता, मैं दूसरी कम्युनिटी से बात कर रहा हूं जो नॉन शिया मेरे बिरादरान बैठे हैं, अल्लाह करे इस कैमरे से कोई ना कोई सुन ले। यूट्यूब पे या गूगल पे फ़कत इतना लिखिएगा वाक़या हुर्रा, और आपको बयानात इतने शिया उलमा के नहीं मिलेंगे जितने नॉन शिया खुतबा ने इस पे बात की है। पहले साल करबला का वाक़या, दूसरे साल मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, 10,000 असहाबे रसूल की औलाद का कत्ल किया गया, 1,000 बच्चा मदीने में नाजायज़ पैदा हुआ। तीसरा साल खाना काबा के सहन में इतनी कत्ल व गारत करवाई गई कि काबे के सहन में कितने कितने महीनों तक लाशें गलती सड़ती रहीं। अभी खाना काबा में हमला चल रहा था या पीछे से खबर आ गई यजीद मर गया, और जब यजीद के मरने की इत्तला पहुंची तो खर्चे आना बंद हुए तो लश्कर बिखर गए। जब लश्कर बिखरे तो बगावत पैदा हुई, अकेला रह गया जनाब अली अकबर का कातिल। अब सर छुपा रहे मेरी जान कहीं से बच जाए, लड़खड़ाता गिरता। खुदा की कसम, अल्लामा फिरोज हैदर साहब ने अपनी किताब में लिखा, शाह साहब फरमाते हैं, औंधे मुंह इसका घोड़ा सहरा की रेत पे गिरा और मर गया। ये गिरा हुआ बेहोश हुआ, ऐसे होश आई, लड़खड़ाता गिरता संभलता, सहराओं की भूख और प्यास देखता देखता ऐसे कोई बस्ती नजर आई, गिरता संभलता लड़खड़ाता उस बस्ती में चला गया और एक दरवाजे के बाहर जाकर बेहोश हो गया। और जिस वक्त इसकी आंख खुली तो एक नरम बिस्तर पे है और कोई शख्सियत सामने दस्तरखान लगा रही है, और हैरान होकर कहता है, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं है। सामने से एक टूटी सी आवाज आई, हसीन तू मुझे भी जानता है? मैं तुझे भी जानता हूं। मैंने पहचाना नहीं है, मुझे नहीं याद मैं कहां बेहोश हुआ था, मुझे मौत आ रही थी, मुझे जिंदा बचा लिया। आप कौन है? माजरत चाहता हूं, मैं शिया तो नहीं मानता जो हाय न करे। मैंने 1 घंटे का वाकया कम से कम 3-4 मिनट में बंद करके तुम्हें सुना दिया है, इतनी ही गुंजाइश थी, लेकिन हाय जरूर करना। मैंने पहचाना नहीं है, कुछ ऐसा करें कि मैं आपको पहचानूं। टूटी हुई आवाज आई, हसीन अगर मुझे पहचानना चाहता है तो एक छोटा सा काम कर, ढेर सारे ऊंट मंगा, मेरे हाथों में रस्सियां डाल और बिन पलाने ऊंटों की पुश्त पे मेरी फुफियों को बिठा। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर ले। 1 घंटा खुदा की कसम फलसफा बैत पे बात कर सकता हूँ, 1 घंटा। और नॉन शिया अहबाब जो जवान जो लड़के इस वक्त मजलिस में बैठे हैं, सिर्फ उन्हें बताने के लिए कि इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, यजीद की पॉलिसी क्या थी। ये अच्छा लग रहा है, बाबा के लिए यही ले लेती हूँ। हिक रात दा कयाम करबला तो 2 साल बाद जनाब अली अकबर दा कातिल रुकिया है, हिक रात वास्ते। अगली सुबह जिस वेले वापस वंजन लगे तो सैयद सज्जाद दरवाजे ते रोक के आखे, अकबर दा कातिल तू साडा मेहमान आए, एक लम्हे वास्ते रुक, मैं पर्दे चू मां दी गल सुना वा। जनाब अली अकबर की दोनों माएँ, मेरा यकीन है मस्तूरात के मजमे में मेरी बीबियां पर्दे में जनाब अली अकबर का पुरसा वसूल करने के लिए बैठी हैं। अल्लाह करे कि हमारी हाय पहुंच जाए और जनाब ज़हरा के दरबार से एक सनत लग जाए और बख्शिश का सामान हो जाए। बाहर अकबर दा कातिल रुकिया है, तारीख दी अंदर आके मंजर डिठा है, सैयद सज्जाद दी ढा निकली है, अजीब मंजर है। बाहर अकबर दा कातिल है, अंदर अकबर दी दुखी मां अपने हत्थां ते पानी दा प्याला चाही खड़ी है। कोशिश करना मेरे भाइयों, शाम हो गई है। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरे इमाम हथ बन के आते, अम्मा खैर आई, बाहर अकबर दा कातिल आई, अम्मा तुसी मन बुलाए खैर आई। तारीख दी मेरी मखदूमा रो के आके, सज्जाद मेरे अकबर दा कातिल साडा मेहमान आई। सज्जाद वापस वंजन लगा है। सज्जाद सब तो पहले अकबर दे कातिल नू आखी भी एक दुखी मां पई आदी है, मेरा तोहफा कबूल कर। सज्जाद जिस वेले तोहफा कबूल कर, यार हर शख्स हाय करेगा, हर शख्स हाय करेगा। सज्जाद जिस वेले तोहफा कबूल कर लवे ना, यानी पानी पी लवे, सज्जाद वत रुक रुक के
वत ठहर ठहर के पुछी अकबर दा कातिल अकबर दी दुखी मां पईया दिए मैं जवाब तो दे जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया या तो वत भन्नी क्यों। वो बंदा सर नीचे कर ले जिसे मातम नहीं आता, जिसे जी करा जी 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 ये आवाजें सलामत रहे, मेरे मौला रहमत नाजिल फरमाए। अंकल सरपरस्त साहब बुजुर्ग हैं, सफेद रीश बड़े हैं मेरे, मेरी गवाही दीजिएगा। कम अज कम मुझे गवाहान चाहिए। इस मजमे में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने मौत नहीं देखी, कोई घर ऐसा नहीं है जिससे जनाजे नहीं उठे, कोई सहन ऐसा नहीं है जिस सहन से मरने के बाद रोने वालों की आवाजें बुलंद नहीं हुई। रखिए सर पे कुरान और मुझे कमालिये का बताइए, मैं और कहीं नहीं जाता, मुझे सिर्फ कमालिये का बताइए। जवान बेटा मर जाए, लोग कम अज कम उसके बाप से जनाजे तक तो छुपाएंगे, कम अज कम मैयत घर आने तक तो छुपाएंगे कि यार उसका जवान मर गया है, उसे बताना नहीं, वो मरने से पहले मर जाएगा। शाह साहब मैंने ना रुखसार फटे हुए देखे हैं जुमलों पे जवानों के, अल्लाह करे कमालिये के शिया सुन्नी भाई समझ जाएं। मैं 10 मुहर्रम के दिन का सबसे नाजुक तरीन लम्हा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे इलाके का रिवाज है, आपके कमालिये का भी होगा, जवान मर जाए लोग मैयत घर आने तक बूढ़े बाप से छुपाते हैं। उसकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई है, उसे बताना नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारे इलाके में लोग यहाँ तक बूढ़े बाप से छुपाते हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला गरीब बाप है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया, जिसकी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा है? जवाब में कोई गरीब को तमाचा मारता था, कोई गरीब को धक्का जी कराम जी कराम जी कराम, कोई तमाचा मारता था। अल किस्सा मुख्तसर आयतुल्लाह अमीनी ने लिखा, लड़खड़ाता गिरता संभलता बाप जवान बेटे के लाशे पे आ गया और लाशे पे आके फरमाते हैं, 1 मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूं, लाशे पे आके फरमाते हैं अकबर अकबर मुझे 2 हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? बाबा एक हाथ सीने पे है। अकबर सीने में क्या है? बाबा सीने में बर्छी है। मारने वाले ने कहा है सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तब मानूंगा। फरमाते हैं अकबर निकालूंगा। शाह साहब ये गवाही दीजिएगा जो जुमला अब पढ़ने जा रहा हूं ये मिंबर पे नहीं आया, बहुत कम आया है तुल्ला मीनी का ये फिक्रा। अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। अकबर मेरी बीनाई खत्म हो गई है, मेरा हाथ पकड़ के अपने जख्म पे रख। तारीख कहती है जवान बेटे ने बाप की कलाई पकड़ी, बाप की कलाई पकड़ के हाथ रखा सीने पे। मिंबर पे ये जुमला कम आया है, सीने पे हाथ रखा, जख्म पे हाथ आया। अब आंखों की बीनाई खत्म थी, नजर आता कुछ नहीं था। आयतुल्लाह अमीनी लिखते हैं बाप ने बेटे के जख्म की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए सीने में हाथ डाला, बर्छी में हाथ आया, जवान लरस गया, सर से लेकर पांव तक अकबर कांप गया। जवान की पेशानी पे मौत का पसीना आया। हुसैन ने रो के फरमाया अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तू कांप रहा है? जवान ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, जमीन हिल रही है। और बाबा अल्लाह का अर्श कांप रहा है तेरा अकबर जी मातम करते आना मेरे भाइयों, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। बाबा तेरा अकबर नहीं कांप रहा, और बाबा खैबर शिकन का पोता नहीं कांप रहा, बाबा अल्लाह का अर्श कांप रहा है। बाबा जमीन हिल रही है, मैं नहीं कांप रहा। अकबर निकालू बर्छी? बाबा निकालिए। अकबर तूने मेरा साथ देना है। बाबा मैं हाजिर हूं। तारीख कहती है अली के लाल ने अकबर के सीने के जख्म की गहराई में हाथ डाला, गरीब का हाथ आया अकबर की बर्छी पे। तारीख कहती है गरीब ने एक हाथ से हिलाया, सर से लेकर जबाओं तक जवान लर्जा, बर्छी को हिलावा दिया, बर्छी नहीं निकली। जहरा के लाल ने दोनों हाथों का जोर लगाया, दोनों हाथों का जोर लगा के हिलाया, जमीन हिली, आसमान हिला, बर्छी नहीं निकली। करबला के मैदान में मंजर ऐसा आया, जनाब इब्राहिम ने फरमाया इस्माइल और हाजरा रुख फेरो, ये और हम और 9 मुहर्रम का वाकया है। खुदा
की कसम मेरे मौला गवाए, कितने जवानों को उठा कर ले गए मैं नहीं जानता। मैं इरादा करके हुसैन का अकबर नहीं पढ़ रहा, मेरे जहन में आ गया, मैं आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ। वो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ के आज रात माफी मांगे जो मातम और हाय न कर सके। जब 2 कोशिशों के बाद जवान की बर्छी नहीं निकली, रो के फरमाते अकबर अकबर मेरी बीनाई खत्म हो गई है, बर्छी नहीं निकलती, मैं क्या करूं, रख मेरे सर पे कुरान। करबला के मैदान में एक जवान बूढ़े बाप से कहता है बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो, ओ बाबा बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के लाल ने बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलल्लाह, और जिब्रील का ताज उतर गया और मलाइका ने तस्बीहां छोड़। I went water